Hello to all the lovely entrepreneurs. This is Trupti Sawant, life coach from Mumbai. Welcome to the most recommended podcast channel Vision 100, where we holistically learn about transforming our life. आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है. क्या आपको कभी फील हुआ है कि मैं वही स्टेप्स और एक्शंस क्यों लूँ इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, या फिर हर थोड़े समय के बाद मुझे कुछ तो अलग करना चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड एंड रीच माई गोल्स. कभी कभी वही स्टेप्स रिपीट करते करते बहुत मोनोटोनस फील हो जाता है. यही सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं या आ चुके हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. Do you know successful people aren't really born that way, but they reach their goals by consistently taking the same action steps again and again, especially वही habits जो unsuccessful लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. So now let's quickly dive into today's topic on why to do things that may look boring to succeed in the business. So keep your pen and paper ready, and we are going to learn about it from our great mentor who can guide us on this topic in the best way, जो already एक successful entrepreneur है global industry में. He's transforming millions of lives and living a life of dreams that most of us want to live. So help me welcome Sumit ji to share his insights on today's topic. Thank you so much. दोस्तों, ज़्यादातर लोग जब सक्सेस के बारे में सोचते हैं, when most people think of success, what they think of is, living in fancy homes, driving luxury cars, traveling around the world, having fun, etc., etc. But these are actually the rewards of success. But if you look closely at these so-called successful people, what you will find, जब आप इन सक्सेसफुल लोगों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, that they spend most of their time sitting in their offices, on their desks, working hard, etc., etc. और ये जो हार्ड वर्क होता है ना, it never looks glamorous. In fact, for many of us, ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो हार्ड वर्क होता है, it even looks boring. Yet I firmly believe, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि it is only by embracing the boring, जब हम इस बोरिंग को अपनाएंगे वास्तव में, then only we can become more successful and have a more exciting and enjoyable life in the end. जब हम इस बोरिंग को अपनाएंगे तभी हम लोग अधिक सफल हो पाएंगे और हमारा जीवन जो है ज़्यादा रोमांचक, ज़्यादा एक्साइटिंग और आनंददायक होगा. आइए, let us discuss how. When I was reading about Bjorn Borg, a Swedish former world number 1 tennis player, the first man ever to win 11 Grand Slam singles titles and the most consecutive Wimbledon titles. So what I found out was that he had a very astonishing and very boring routine on the day of his matches. जब मैं बियॉर्न बॉर्ग के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि उनका एक बहुत ही astonishing और बहुत ही बोरिंग सा रूटीन हुआ करता था अपने important मैचेस खेलते समय. Before every match, he used to eat at the same restaurant, sit on the same table with the same person, and always order the exact same meal. सेम रेस्टोरेंट पे खाना खाते थे मैच से पहले, सेम टेबल पे बैठते थे, सेम व्यक्ति के साथ और सेम खाना ऑर्डर करते थे. Afterwards he used to go to the same hotel room where the temperature of the thermostat used to be always set to the same temperature, and he used to sleep for the same number of hours. सेम होटल में सोते थे रात में वो, जहाँ पर टेम्परेचर तो था, सेम कमरे में हमेशा एक ही जैसा रहता था, सेम नंबर ऑफ आवर्स वो सोते थे, उनका सोने का टाइम, जगने का टाइम बिल्कुल फिक्स्ड होता था. और सुबह उठने के बाद ही यूज्ड टू गेट पिक्ड अप बाय द सेम पर्सन एवरी ईयर इन द सेम कार, एंड देन ही यूज्ड टू गो प्ले हिज मैच. और स्टेडियम पे भी आने के बाद वो अपना सेम तरीके से अपने लॉकर में जाते थे, सेम लॉकर होता था और वहाँ पर वो अपना सेम गियर रखते थे और उसके बाद मैच खेलते थे. एंड आफ्टर द मैच ही यूज्ड टू गो टू द सेम कॉफ़ी शॉप जहाँ पर वो सेम टाइप की कॉफ़ी हमेशा ऑर्डर किया करते थे. नाउ माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ दैट टाइम. और शायद हमें ऐसा लगे, मे बी आफ्टर नोइंग दिस वी मे फील कि एज इफ दिस एथलीट ही हैज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD. या हो सकता है कि कुछ लोगों को ये भी लगे कि यार ये तो सुपरस्टिशियस है. सम पीपल माइट इवन कॉल हिम सुपरस्टिशियस. लेकिन उनके माइंड में क्या चल रहा है? इन हिज ओन माइंड व्हाट वाज ही डूइंग?
He was simply following a set of pre-programmed activities before the game, during the game, and after the game. Like a pattern, like a habit, which will give him the best results, which is his championship. But दोस्तों, Bjorn Borg is not alone. वो एक अकेले एथलीट नहीं है जो ये सब करते थे. Today, when I watch elite athletes across other sports throughout the world, I notice similar unique idiosyncrasies and rituals in all of them. दुनिया भर में सभी elite athletes में इस तरह की idiosyncrasies और rituals जो है वो पाए जाते हैं. All of them follow almost the same boring rituals and routines every single day, each day, in their training, practice, eating, resting, recovering, in all the activities. वो अपनी सब एक्टिविटीज़ में सेम रिचुअल्स, सेम रूटीन्स जो है वो हर रोज़ डे आफ्टर डे फॉलो करते हैं ताकि वो अपने हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर सकें. हो सकता है बीच बीच में समटाइम्स यू माइट सी देम एंजॉइंग इन द क्लब्स एंड पार्टिंग, लेकिन अगेन द नेक्स्ट डे फिर से उनका वही रूटीन चालू हो जाता है. दे आर अगेन बैक टू डूइंग द सेम रूटीन, प्रैक्टिसिंग देयर स्पोर्ट. एंड दीज आर नॉट जस्ट क्वर्क्स, ये कुछ विचित्रताएं नहीं है उनके अंदर. These athletes literally, all these athletes literally do the same boring thing every single day. Why? Because it allows them to be successful in whatever they do. So friends, whether in sports world or in the business world or the arts world, हर जगह पे, everywhere, in order to be a good professional, एक सफल प्रोफेशनल होने के लिए what you have to do is basically do the same simple things repeatedly over and over again, which a lot of other really good people find a very boring process. बाकी जो लोग हैं वो इसे बहुत ही boring process समझते हैं, इसलिए कर नहीं पाते. But somehow successful professionals always find a way to do these boring activities repeatedly and not only do them but also enjoy them. And this is what makes them successful in whatever they do. और यही चीज़ जो है उन्हें सफल बनाती है जो भी वो काम करते हैं उसमें. लेट अस लुक एट दिस इन अदर एरियाज ऑफ आवर लाइफ. आइए इसको हम लोग अपनी लाइफ में और जगह देखते हैं. वी ऑल एडमायर एट हाउ गुड द सेलिब्रिटीज लुक इन देयर सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टा रील्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा. हम लोग हमेशा सेलिब्रिटीज़ को एडमायर करते हैं कि वो कितने सुंदर दिखते हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में, अपनी इंस्टा रील्स में, पेपर्स में, अखबारों में, पिक्चर्स वगैरह में. एंड समटाइम्स वी फील जेलस एट देयर पिक्चर परफेक्ट गुड लुक्स, थिंकिंग कि वो कितने लकी हैं टू हैव सच गुड लुक्स, फिगर, पर्सनालिटी वगैरह वगैरह. और हमें ऐसा लगता है कि ये सब इन्हें विरासत में मिला है. वी ऑलवेज फील लाइक इट इज़ जस्ट देयर गुड जीन्स, दे आर जस्ट जेनेटिकली लकी दैट दे इनहेरिटेड दीज गुड लुक्स. बट फ्रेंड्स, दीज सेलिब्रिटीज दे रियली टेक गुड केयर ऑफ देयर डाइट, ऑफ देयर बॉडीज. दे डू एक्सरसाइज डेली. और अगर हम बात करें डेली एक्सरसाइज की तो हम लोगों को भी पता है कि हमारे लिए अच्छी है ये. वी ऑल्सो नो एक्सरसाइजिंग डेली इज गुड फॉर अस, और वी डोंट डू इट. वाई? बिकॉज वी फाइंड इट बोरिंग, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ एक्सरसाइज. वो सेम सेट ऑफ एक्सरसाइज हमें हर रोज हर बार रिपीट करनी पड़ती है फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और शुरू में कोई विजिबल रिजल्ट्स भी मिलते नहीं है. इन द बिगनिंग वी हार्डली सी एनी विजिबल रिजल्ट्स इन द शॉर्ट टर्म. तो होता क्या है कि वी स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज रूटीन. हम लोग कोई नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करते हैं. वी आर एक्साइटेड अबाउट अ न्यू जिम मेंबरशिप. शुरू में अच्छी लगती है वो सब चीज़ें, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे बिकम टीडियस एंड बोरिंग वी जस्ट ड्रॉप इट. सो मैंने क्या देखा है कि लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर आवर सक्सेस, हमारी सफलता के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी हैं, दे डोंट लुक ग्लैमरस और एक्साइटिंग एट ऑल, बट दे सीम boring and monotonous. मेरे लिए भी, for me also, when I was a kid, it was not fun to sit at home and study long hours, जबकि बाकी बच्चे, other boys, my friends were out there playing games in the park. But लेकिन आज, today when I look at those boys and their life and I look at my life, I'm very happy उस वक्त कि I did not leave my books and run out to play with them. कि बचपन में मैंने अपनी किताबें छोड़ के मैं नहीं भाग गया था उनके साथ खेलने के लिए. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आई एम ग्लैड आई डिड ऑल दोज बोरिंग स्टडीज़. मुझे बहुत खुशी होती है, आज गर्व महसूस होता है कि मैंने वो सब बोरिंग पढ़ाई करी. दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू हैव वॉट आई हैव टुडे. सी, मोस्ट ऑफ यू मे फाइंड वर्किंग एट योर लैपटॉप
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करने में बोरियत महसूस हो. मे बी डूइंग जूम मीटिंग्स एवरी डे विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स और मेकिंग फोन कॉल्स एवरी सिंगल डे मे बी वेरी बोरिंग फॉर यू. और मे बी यू डोंट फाइंड इट वेरी कूल और फन और एक्साइटिंग टू रीड बुक्स एवरी डे. हम कहते हैं ना कि हर रोज 10 मिनट किताब पढ़िए. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो बोरिंग काम लगे. और मे बी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट रेगुलरली यू माइट फाइंड इट बोरिंग, क्योंकि सुन तो लिया, बार बार सुनने की क्या जरूरत है. आई हैव ऑलरेडी लिसन टू इट वंस, व्हाई टू लिसन टू इट अगेन एंड अगेन. बट फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है ये सारी बोरिंग एक्टिविटीज छोड़कर, इज इट पॉसिबल दैट वी लीव ऑल दीज बोरिंग एक्टिविटीज, नॉट डू देम एंड स्ट्रेट अवे स्किप टू द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ? क्या ये पॉसिबल है कि हम स्ट्रेट अवे आगे स्किप करके आगे बढ़ के अपनी लाइफ के सारे रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली एंजॉय कर लें? इज इट पॉसिबल वी कैन बी फाइनेंशियली फ्री, लिव अ लैविश लाइफस्टाइल, हैव अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स एंड डू ऑल द थिंग्स ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड शोइंग ऑफ आवर लाइफस्टाइल विदाउट डूइंग दीज बोरिंग एक्टिविटीज? इम्पॉसिबल, नामुमकिन. अल्टीमेटली इट्स द बोरिंग दैट लीड्स टू द ग्लैमरस एंड फन पार्ट इन आवर लाइफ. ये जो बोरिंग काम है यही रूप देते हैं आपके लाइफ में ग्लैमरस एंड फन चीजों को. It is the tireless, diligent work that no one sees that you have to do daily. That's what leads to a tremendous success over a period of time. ये boring आते rituals यही magic हैं which will actually help you to come closer to your dreams and goals. कभी कभी तो people around you also make fun at your routines. लोग भी मजाक उड़ाते हैं कभी कभी हमारे routines का. उनको लगता है कि हम लोग बहुत strictly अपने routine को follow कर रहे हैं. And they make fun of how strictly we are following our routine. ऐसे लोगों में खुद तो डिसिप्लिन होता नहीं है कि वो अपना रूटीन बना के फॉलो कर पाए, लेकिन दूसरों के रूटीन पे वो हमेशा मजाक उड़ाने में चूकते नहीं हैं. These people don't have the discipline necessary to create their own routine, but they like to poke fun at other people's routines. My advice to you is don't get affected by them. उनकी बात मत सुनिए आप लोग. क्यों? बिकॉज आप लोगों को पता है कि आपका रूटीन कितना पावरफुल है. और ये चीज़ जो है हम लोगों ने अपने एक पिछले एपिसोड नंबर 23 में भी क्लैरिफाई करी थी. देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन हैविंग अ रूटीन वर्सेस फॉलोइंग इनटू अ रट. अब अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करूं और न्यूरोसाइंस में जाऊं, इफ आई गो अ लिटिल बिट साइंटिफिकली इनटू न्यूरोसाइंस एंड इफ एक्सपर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, अगर एक्सपर्ट्स की बात मैं बताऊं, देन व्हाट दे क्लेम, वो क्या बताते हैं कि एक्सपीरियंसिंग बोर्डम, जब हम बोरियत महसूस करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो हमें करनी ज़रूरी होती हैं, देन दैट कैन एक्चुअली बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर यू. वो ये कहते हैं कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ब्रिलियंस टू समहाउ स्ट्राइक यू, कि एकदम से एक ब्रेन वेव आएगा, कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो वो क्या कहते हैं कि वो पाने के लिए सबसे पहले अपने काम में बोर होना ज़रूरी है. These are the actual words they say, that if you want to have a brilliant breakthrough in your work, then try getting bored first in your routine work. ये कैसे संभव है? How come this is possible? दोस्तों, सबसे पहले तो getting bored with activities helps us in maintaining and creating new neuroplasticity in our system about those activities. ये जो हमारे न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ना ब्रेन में, they are being formed on a daily basis and also breaking on a daily basis. ये हर रोज बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं. वो नॉलेज जो हमें उन चीज़ों से मिलती है जिन्हें हम परमानेंटली अपने ब्रेन में बार 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 रीइंफोर्स कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म के बाद एकदम ब्रेन में परमानेंट हो जाते हैं. इसे कहते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी. Neuroplasticity is about making the wiring in your brain which actually forms our habits. And ये तभी संभव है, that happens only when we actually start experiencing boredom in our daily activities. Secondly, दूसरी चीज, getting bored in doing some activities actually means कि हम लोग जो हैं अपनी ब्रेन में जो एनर्जी है उसे कंजर्व कर रहे हैं. और ये ज़रूरी क्यों होता है? बिकॉज our brain is the most energy consuming organ in our body. हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज़ में खर्च होती हैं. 25% of our calories in the body are consumed by our brain activities.
तो जब हम कोई काम बार बार कर रहे हैं देन दैट एक्चुअली बिकम्स पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस, वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। और फिर उस काम को करने में when we actually get bored in doing something, that means कि वो काम अब हमारे लिए ऑटो पायलट पे होना शुरू हो गया है, which means कि हमारी एनर्जी कम खर्च हो रही है और हमारा जो मेंटल एफर्ट लगता है उस काम को करने में, वो मेंटल एफर्ट अब कम लग रहा है। थर्डली, तीसरी चीज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि when we go through boredom inducing tasks, जब हम ऐसे काम करते हैं जिन्हें रिपीटेडली करने के बाद कुछ समय बाद बोरियत महसूस होने लगती है, दैट मीन्स दैट नाउ दैट वर्क विल स्पार्क इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। अब वो काम जो है वो हमारा और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव होने वाला है। ये कैसे, हाउ कम? डॉक्टर तारा स्वार्ट एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और ऑथर हैं। शी सेज दैट व्हेन वी गेट बोर्ड डूइंग समथिंग, we are actually igniting a brain network called the default mode, जहां पर हम लोग जो है सबकॉन्शियसली अब काम करने लगे हैं, where we have started thinking subconsciously, and this default mode is that part of the brain जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जो है वो बसती है। It's that part of the brain where problem solving and creativity lives. It's called autobiographical planning. यानी अब इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि हमने इतनी फ़ोन कॉल्स, इतने प्रेजेंटेशंस, इतनी एक्टिविटी इतनी बार कर ली है कि अब वो जब वो ऑटो पायलट पे आती है और हमें एक बोर्डम वाली फीलिंग आने लगती है कि ये मोनोटोनस हो रहा है, तो उस वक्त हमारा ब्रेन, आवर ब्रेन इज नॉट स्पेंडिंग सो मच एफर्ट इन ट्राइंग टू डू दैट वेल, बट इट्स थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव एंड हाउ टू डू इट मोर क्रिएटिवली। उस काम को करते करते हम लोग जो है सामने वाले व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज, उसके विजुअल क्यूज रीड कर पा रहे हैं, और साथ साथ वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हाउ दिस एक्टिविटी इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू अचीव आवर गोल्स। मतलब वो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की जोन में अब हम चले जाते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं जो मैंने आपको बताया है इसकी वजह से आप अपना वो पुराना घिसा पिटा काम करें जो रिजल्ट्स भी नहीं दे रहा है, which is not giving you any results, and also it is giving you boredom. It does not mean that we should keep on repeating our old mistakes again and again and again. But what it means is that हमारी जो important activities हैं, जहाँ हमारा self development भी हो रहा है और जो हमें अपने goals की तरफ भी अग्रसर कर रही हैं, हमें अपनी वो ज़रूरी activities करते हुए अगर बोरियत हो रही है तो ये natural भी है और ठीक भी है, rather अच्छा है हमारे लिए। You know, if those activities which we are doing repeatedly, which are taking us towards our goals and also bringing us personal growth inside us, if they are inducing boredom within us, then that is actually quite normal and natural and also very very good for us. If I were to give you my own example, अगर मैं आप लोगों को खुद का example दूं, तो many people who know us, they usually find our lives very interesting. जो लोग हमें जानते हैं उन्हें हमारी लाइफ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दिखती है। You know, being a micropreneur, entrepreneur, supposedly living an idyllic life, हमारे पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, मनी फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइसेस हैं, वी आर साइमल्टेनियसली लिविंग एंड एंजॉइंग लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स। हमारे पास बहुत सारी लग्जरी लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ हैं हमारे आसपास, एंड इवन दो वी डोंट पोस्ट आवर लाइफ मोमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, हालांकि हम लोग अपने लाइफ के मोमेंट्स जो हैं उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल पीपल हु नो अस, दे नो ऑल दिस एंड मच मोर अबाउट अस। हाउएवर, लेकिन अगर आप लोग हमारी ज़िंदगी का, हमारे हर एक दिन का, हर एक घंटे का एक स्नैपशॉट ले पाते, इफ़ यू आर एबल टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ एवरी आवर ऑफ एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, what you will see is that our life is actually very very simple. I work on my business, I exercise, I eat healthy, I read, I make phone calls, I do remote meetings, I sleep, I relax. Nothing glamorous, nothing exciting at all. हो सकता है maybe 5% of our activities are spontaneous, filled with adventure or having some travel in it. लेकिन 95% of our activities are just daily rituals, जो कि आप में से बहुत से लोगों को शायद बोरिंग लगे when we are doing it, but ultimately they are what lead us to our growth and success in life.
सो दोस्तों, आई होप कि ये जो एपिसोड हम लोगों ने बनाया, इट विल मेक यू लुक डिफरेंटली एट ऑल द बोरिंग एक्टिविटीज दैट यू डू राइट नाउ, एवरी डे, एवरी वीक. एंड ऑल्सो आई होप कि इस एपिसोड से यू विल ऑल बी डिसिप्लिन्ड. आप लोग अपने आप को अनुशासित करेंगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू अनलॉक ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दीज डेली एक्टिविटीज एंड हेल्प यू प्रोग्रेस फ्रॉम देम इन लाइफ. क्योंकि हमने क्या देखा है कि इट इज़ ओनली बाय क्रिएटिंग रूटीन्स इन लाइफ. जब आप रूटीन्स बनाते हैं, चाहे कितने भी बोरिंग क्यों ना लगे, एंड देन बाय डेवलपिंग द डिसिप्लिन, जब आप लोग अपने आप को अनुशासित करते हैं टू फॉलो दीज रूटीन्स, दैट इज वॉट विल प्रिजर्व योर एनर्जी. इट विल हेल्प यू टू accomplish the most in every single day with minimum effort, and ultimately this is what will lead you to success in the shortest possible time frame. That's all for today. Love you all. We'll be back next week with another topic. Take care. Bye for now.